आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। इन दिनों पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि 2023 इस सदी का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है, लेकिन 2024 यानी अगला साल कैसा होगा, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एल नीनो का इम्पैक्ट बढ़ने से टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस साल यानी 2023 में टेम्परेचर के टॉर्चर ने कई सौ और हजार सालों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। लेकिन 2024 को लेकर नेसा की जो रिपोर्ट आई है वो और भी डराने वाली है। नेसा की माने तो 2024-2023 से भी ज़्यादा हॉट गर्म रहने वाला है। नासा का कहना है कि अभी जो टेम्परेचर का टॉर्चर है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने से हुआ है। लेकिन अभी एल नीनो का इम्पैक्ट दिखना बाकी है, क्योंकि अब एल नीनो पूरे वेदर साइकिल को पलट देगा। इससे पारा और चढ़ने लगेगा, हॉटर एक तरह से कहा जाए जो समुद्र हैं वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, जिससे तूफान आएंगे, ग्लेशियर और तेज़ी से पिघलने लग जाएंगे और इस तरह सी लेवल बढ़ जाएगा। इसका असर जो है दुनिया के कई आइलैंड कंट्रीज पर भी बुरा पड़ेगा। और वहीं टेम्परेचर का टॉर्चर आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपका बजट भी बिगाड़ने वाला है। जी हाँ, 2023 अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है, हॉटेस्ट साल रहा है। और अब नेसा का कहना है कि 2024 इससे भी ज़्यादा हॉट रहने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हेल्थ इम्पैक्ट भी होगा कहीं ना कहीं। और इसको लेकर एक स्टडी की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, लोगों में हेल्थ इश्यूज और भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। और हेल्थ इश्यूज के बढ़ने के साथ ही हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ेगा। मतलब हेल्थ केयर कॉस्ट के बढ़ने से लोगों का बजट भी बिगड़ने वाला है एक तरह से। वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी एंड द सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस ने यह स्टडी की है और उसके बाद रिसर्च के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि टेम्परेचर की टॉर्चर की वजह से हर साल 56,000 हॉस्पिटल में एक तरह से कहीं ना कहीं लोग एडमिट होंगे और कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको एरिजोना लिए चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट की वजह से किस तरह से बीज की पॉपुलेशन पर असर पड़ रहा है। If you look really close, you can see her tongue. Just like any living creature, bees can only tolerate so much heat, especially in Arizona, and record-breaking conditions. This is sugar water. It's a food source, supplement food source, and then this is regular water. Studies have indicated extreme heat is leading to a decline in bees. That's why beekeeper Connie Moore is doing all she can to protect them. All of mine have screen bottom boards. Allows for lots of airflow. They'll use a gallon of water a day sometimes, if not more. Yeah, just trying to cool, and not consuming it, but cooling off the hive and all that stuff. She is the owner of Honey Hive Farms in Peoria, where right now she is taking some of her bigger colonies and making them smaller, placing them in shaded areas. We pulled bees off and basically made what we call nukes, a nucleus baby colony. Just to kind of help dissipate that heat, less bodies in that house. Unfortunately, even with precautions, the heat impacted a colony at her new farm, meaning they lost nearly 30,000 bees. She says even losing one is devastating. If they die off, we are in big trouble. That impacts our whole food system. Not just that, but they are beneficial because obviously they're the only ones that make honey. Honey is used not just for consumption, but it's also used for sometimes wound care. But there are things you can do to help. The best way to keep bees cool is to leave out a bucket of water for them and put it in the same location. That way they know where to go. It's also helpful if you use a floating device, place it inside the water. That way if they fall in, they're able to climb back out. Connie is passionate about what she does, holding courses on beekeeping and educating the younger generation. Now, to create honey, it takes a whole lot of effort. Holding presentations to show people why bees are important and how good their honey tastes. That is good. Ashley Paredes, ABC 15, Arizona. और वहीं दूसरी तरफ हीट वेव का अटैक यूरोप पर भी देखने को मिल रहा है। चाहे टर्की की बात कर लें, इटली या फिर ग्रीस या फिर इंडिया, यहाँ पर गर्मी के साथ साथ एक तरह से देखा जा रहा है फ्लड की सिचुएशन भी देखी जा रही है। आपको ग्रीस लिए चलते हैं। ग्रीस में हीट वेव का एक तरह से अटैक देखने को मिल रहा है। हीट वेव ने यहाँ नॉर्मल लाइफ को डीरेल कर दिया है। ग्रीस में टेम्परेचर के टॉर्चर से लोगों का बहुत बुरा हाल है। कैपिटल एथेंस अब वीरान नजर आ रहा है। सड़कों पर लोग भी कम नजर आ रहे हैं। हीट वेव की वजह से अलग अलग जगहों पर करीब 20 टूरिस्ट जो हैं गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं। एथेंस के मॉन्यूमेंट वर्कर जो हैं हीट वेव की वजह से पार्शियल स्ट्राइक पर हैं।
ग्रीस का एक तरह से कहा जाए टूरिज्म पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पर था, जो कि अगर संडे की अगर बात करें तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में टेम्परेचर और भी ज़्यादा जाएगा। वहीं ग्रीस में वाइल्ड फायर की वजह से करीब 7 जोन्स को खाली करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो एक तरफ वाइल्ड फायर तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में हीट वेव का अटैक।